Good morning to all of you. Welcome students in our channel Pharmaceutical Inorganic Chemistry. Today we are discussing about the limit test of sulfate. Why do we do limit test for the sulfate? What are the principles involved in the limit test of the sulfate? What is the reactions involved in the limit test of sulfate? What are the procedures to be followed for performing the limit test of the sulfate? So dear students, this is the topic for the B Pharma students and D Pharma students in pharmaceutical inorganic chemistry. And in the previous video you have learned about the limit test for the chlorides. In the same series we are discussing here today the limit test for the sulfate. Why do we perform the limit test for the sulfate? Limit test for the sulfate is designed to determine the allowable limit of the sulfate content in a given sample. हम लिमिट टेस्ट करते हैं सल्फेट का, क्यों करते हैं, ऐसे क्या ज़रूरत है, और इसीलिए उसको सल्फेट के लिमिट टेस्ट को इसीलिए हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम एक गिवन सैंपल में, एक गिवन कंपाउंड में हम सल्फेट की क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकें कि वो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया से कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कहीं परमिशिबल लिमिट से कहीं ज़्यादा तो नहीं है. यदि है तो हम उसको फिल्ट्रेशन मेथड से या किसी अदर मेथड से रिमूव आउट कर लें, एलिमिनेट कर लें, ताकि हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसकी प्रेजेंस की वजह से, सल्फेट आयंस की प्रेजेंस की वजह से कंटामिनेट ना होने पाए या उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होने पाए. तो इसीलिए जो है हम सल्फेट का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. तो इसके लिए पीछे प्रिंसिपल क्या है आपको बताते हैं. The limit test of the sulfate is based on the reaction of the soluble sulfate with barium chloride in the presence of dilute hydrochloric acid to form barium sulfate, which appears as solid particles or turbidity in the solution. It means during the performance of the limit test of sulfate, we have taken the sample containing the sulfate in the soluble form. Then when it is reacted with barium chloride in the presence of dilute HCl, hydrochloric acid, that will forms barium sulfate. This barium sulfate appears as white turbid particles या white particles या solid particles which in the form of turbidity or opalescence in the solution. This turbidity or opalescence can be measured and compared along to with the standard sulfate solution to know or determine the limit of the sulfate in the given sample. If the turbidity of the sample is more than the standard solution, then the sample is said to fail the limit test, and if the turbidity of the test solution is less than that of the standard solution, then the sample is to said to pass the limit test of the sulfate. यदि हमारी टर्बिडिटी जो है टेस्ट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम आती है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सल्फेट क्वांटिटी है वो परमिसिबल लिमिट में है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉलो करता है एंड लिमिट टेस्ट पास होता है इस वजह से. और यदि इसके उलट यदि सल्फेट की जो टेस्ट सैंपल है उसमें यदि टर्बिडिटी ज़्यादा आती है अपेक्षाकृत स्टैंडर्ड सैंपल से, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो इसका मतलब जो हमारा गिवन सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को फेल हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारा इसकी प्रिंसिपल है. तो प्रिंसिपल को आप ये ज़रूर ध्यान रखना. तो अब ये आप देखिए रिएक्शन इसका, अब देखिएगा सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड से हम जब ने इसका रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट HCl, that will forms barium sulfate which appears as a turbid or solid particle. This turbidity shall be compared with that of the turbidity produced by the standard solution. और ये KCl फॉर्मेशन हो रहा है साथ में पोटेशियम क्लोराइड. अब ये देखिएगा सॉल्युबल सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट बना और क्लोराइड जो है ये भी सॉल्युबल फॉर्म में आया. Now, then comparison of the turbidity is done with the standard turbidity obtained from a known amount of sulfate, and same volume of the dilute hydrochloric acid have been added to both the solutions. The barium chloride test solution in the IP has been replaced by the barium sulfate reagent, which is
having the barium chloride sulfate free alcohol and a solution of potassium sulfate. Potassium sulfate has been added to increase the sensitivity of the taste. Now अभी हम जो रिएजेंट्स इसमें ऐड किए हैं वो क्यों ऐड किए हैं उसका आपको अब रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए बेरियम क्लोराइड का जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसको पहले इस तरह से हम प्रिपेयर करते थे, बट आज जो आईपी में अभी क्या क्या है कि बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसको रिप्लेस किया गया बेरियम सल्फेट से, रिएजेंट से, बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ये इस टर्म को आप ध्यान रखिएगा। ये जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट है इसमें बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक, सल्फेट फ्री अल्कोहल भी प्रेजेंट है एंड ए सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। इन तीनों के मिक्सचर से बेरियम सल्फेट रिएजेंट प्रिपेयर किया गया है। अब पोटेशियम सल्फेट का एडिशन करने का रीज़न ये है कि इस टेस्ट की जो है सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सके। नाउ नेक्स्ट है प्रोसीजर। व्हाट इज द प्रोसीजर और मेथड इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट? प्लेस 1 ml of 25% solution of the barium chloride in the Nessler cylinder. Add 1.5 ml of ethanol free sulfated standard solution. Allow to mix. Add 15 ml sample solution as directed under the monograph, ठीक है। 15 ml हम उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और 0.15 ml हम 5 मोलर एस्टिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उस वॉल्यूम को हम मेकअप करेंगे 50 ml तक विद डिस्टिल वाटर। नाउ स्टिर विद द ग्लास रॉड एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। उसको हम स्टिर करेंगे ग्लास रॉड से और उसको 5 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। नाउ कंपेयर द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग 15 ml ऑफ द स्टैंडर्ड सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन अनदर नेस्लर सिलेंडर। जैसे कि हमने क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में नेस्लर सिलेंडर लिया था, सेम उसी वे में हम भी यहाँ भी नेस्लर सिलेंडर का यूज़ करेंगे। ना और इसकी अगर हम टेबुलर फॉर्म में बात करें, टेस्ट सैंपल कैसे हम बनाएंगे? टेस्ट सॉल्यूशन स्पेसिफिक वेट हम कंपाउंड का लेंगे, उसको हम डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे एंड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज डायरेक्टेड इन द फार्माकोपिया एंड ट्रांसफर इन द नेस्लर सिलेंडर। ओके, नाउ then add 2 ml of the dilute HCl, then make up the volume with 245 ml with distilled water, ठीक है। now add 5 ml of barium chloride solution, उसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। and keep aside the reaction mixture for 5 minutes and next finally observe the turbidity. How to prepare the standard solution? Standard solution is prepared by taking 1 ml of 0.1089% of weight by volume solution of potassium sulfate in Nessler cylinder. Now in the next step similarly add 2 ml of dilute HCl. Now wake up the volume to 45 ml with distilled water. Now nextly add 5 ml of barium chloride, already prepared barium chloride solution or barium sulfate reagent solution. Okay, now keep the reaction mixture aside for 5 minutes and observe the turbidity. Now here इसमें टर्बिडिटी को जो ऑब्जर्व करना है हमें, यदि अगर हमारा सैंपल का टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम आती है, डैट मीन्स द सैंपल पासेस द लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट, एंड इफ द टर्बिडिटी ऑफ द टेस्ट or the sample solution is more than the turbidity produced by the standard solution, then it means the sample fails the limit test of the sulfate, ठीक ना। अब से रिएजेंट्स जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्यों ऐड कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है, फॉर एडिंग dilute HCl helps to make the solution acidic. Potassium sulfate is used to increase the sensitivity of the taste by giving ionic concentration in the reagent. and alcohol जो है हमारा अल्कोहल इथेनॉल फ्री सल्फेट जो हम ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल जो है हमारा प्रिवेंट्स सुपर सैचुरेशन को ही प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। सुपर सैचुरेशन इन द सेंस कि जो उसमें अदर फ्री रेडिकल्स हैं उसके साथ जो है टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। ये रिएक्शन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका रहा लिमिट टेस्ट सल्फेट का। फिर हम अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल भी बहुत सिंपल है, प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है, रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। आपको रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किए थे क्लास में, ठीक है। आप लोगों को पता भी है कैसे इसको करना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल।
फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।